my YouTube channel, Zaida's Interesting Vlogs. I hope you are doing absolutely fine and great. So today we are gonna start NCERT Geography chapter number 4, that is climate, which is really a very toughest and interesting chapter once if you understand the terminology. Here in this chapter, the terms are very much important. Terms climate. Okay, so what we understand by climate? So in our NCERT textbook, we first have the difference between the climate and weather. But just reading this, everything won't understand it. We won't understand it. Let me say you a short story. Once my brother, he was suffering with fever, so he consulted the doctor, and the doctor said that because of weather change, he got the fever. And once one of my cousin came from America to India to spend her vacation with us. So when she came, she was having some fever. So she consulted the doctor. The doctor said that maybe due to climatic change, she may get the fever. And after coming back home, my brother started asking a frequent questions that are both weather and climate synonyms? Why is he using, when I got fever, he used because of the weather change, and for her they used climate change. But why is it so? Both are synonyms? No, not at all. They both are completely different. What is the difference? We are gonna see. Yes, both weather and climate are completely different. So what is climate? Climate is the average of weather conditions over a large area for a long period of time. Average. या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं sum total of weather conditions. Both are same only. Behalf of average, we can use sum total of weather conditions over a large area for a long period of time. Okay, so what they will do, they take the weather conditions. So before that, let us see what is weather. Weather is the day-to-day phenomenon. That is, the weather is a day-to-day phenomenon. Now we will say the weather is so cool. Like at afternoon, it will be somewhat hot, right? So weather is somewhat hot, like that. But a common pattern is observed for a week or month on the generalized monthly atmospheric conditions only. They have divided a year into seasons, okay, and total world into different climatic regions. हम लोग बोलते हैं ना, हमारी इंडिया की क्लाइमेट क्या हो, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, अमेरिका की क्लाइमेट क्या है, टेम्परेट क्लाइमेट. So like that. Now got it, weather, state of atmospheric condition over at any point of time. अभी टाइम हो रही है जैसे कि मॉर्निंग हो रही है 10:30 ऐसी हो रही है. So at morning 10:30 the weather is so cool. At afternoon 2 or 2:30 the weather will be somewhat hot. So like that, weather fluctuates within a day. Weather conditions fluctuate within a day-to-day phenomenon. State of atmospheric condition over an area at any point of time. Climate, it is a sum total of weather conditions. यानी कि 30 years, यानी कि इधर एक और more than 30 years, weather conditions more than 30 years. So for 30 years they have did the research, like they took the total of weather conditions to obtain the climate of our India, and for weather conditions more than 30 years or 20 years, and got our India climate as monsoon type of climate. So that is what the thing is, sum total of weather conditions over a large area for a long period of time. Okay, and weather is a day-to-day phenomenon. To obtain the climate, they have taken the average of weather conditions over an area, over a particular area, हमारी इंडिया की एरिया को लेकर for a long period of time, say 20 to 30 years. हो गया. And as I said, the world is divided into different climatic regions. हमारी इंडिया की climate है monsoon type of climate, अमेरिका की है temperate climate. Like that, there are some other countries also. They have some different types of climatic conditions. Okay, we can't define it. Now, got to know this climate and weather के बीच में जो difference, ये दोनों की definition या फिर concept difference होगी, but elements are same. Okay, weather and conditions, both may be different, but the elements are same. What are the elements? We get it out, right? What are the elements? Temperature, atmospheric pressure, precipitation, right? Wind and humidity. So these are the elements of weather and climate which remain the same. Okay, and now as I said, so according to this monthly atmospheric conditions, generalized monthly atmospheric conditions, they have divided a year into seasons and the total world into different climatic regions, and our India's climate is monsoon type of climate. Now that only we are going to study. How did we got to know that India's climate is monsoon type of climate, and that we are going to see. Okay, from which Arabic word is this monsoon derived, that we are going to see. Yes, now next talking about the India's climate. So what is India's climate? India's climate is monsoon type of climate. Okay, monsoon type of climate. And we often relate monsoon with rain, but no, monsoon is not rain. Okay, it is the seasonal reversal of wind direction. Kya? Seasonal reversal of wind direction. I will explain you. So India's climate is monsoon type of climate, and monsoon word is derived from the Arabic word monsoon, which means season. So what does monsoon mean? Monsoon means the seasonal reversal of wind direction. And why is it derived from the Arabic word? Why is it not derived from Greek word or Latin word? That also I will say. And
apart from that, I'll also say that why does it mean the seasonal reversal of wind direction, that will also say, and how did this benefit the traders. Okay, so monsoon benefited the traders a lot. Now for that we have to move into our India map. So here we are in the front of India map. Now let us see why does monsoon refers to the seasonal reversal of wind direction. So actually monsoons in India are caused because of some winds called as southwest monsoon winds. तो साउथ वेस्ट यानी कि इधर से आएंगे, इसको भी पता होंगे कि साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स को रिमेम्बर कैसे करनी है कि वो उधर से आएंगे। वो बहुत ही सिंपल है, बताती हूँ। उसका पूंछ पकड़नी है हम लोगों को, वी हैव टू कैच द टेल एंड दैट्स डन। तो हमारी इंडिया में बारिश आती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड क्या करता है, हमारे पूरी इंडिया में बारिश लाते हैं और हमारी इंडिया लाई करती है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के प्लेस के ऊपर, और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड से पूरे ड्राई विंड्स आ जाते हैं इधर। तो पहले हम लोग बात करते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, अरेबिक वर्ड ही क्यों, हाउ डिड इट बेनिफिट द ट्रेडर्स। सो यस, नाउ द ट्रेडर्स आर बेनिफिटेड बिकॉज actually in summers what happens, there is a high pressure created over here, and in winters there is a low pressure created, in summers only there is a low pressure created here. Why is it so, that we will see in further sections. So there is a high pressure created over here and there is a low pressure created over here, क्योंकि one property you just remember, that is land heats up fast, cools fast, which we must learn from 6th class or 5th class only. land heats up fast, cools fast. So साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जब आते हैं समर में, वो क्या करते हैं, अपने शिप्स को रेडी कर देते हैं, सभी गुड्स को पैक करके रेडी हो जाते हैं। और जब विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एंड विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑन सरफेस, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ जब विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ब्लो हो रही है, जब वो ब्लो हो रही है, वो शिप्स भी उसी तरह ब्लो होंगे, बिकॉज द विंड्स आर मूविंग दिस साइड, राइट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो बारिश लाते हैं हमारी इंडिया में, उसकी बात हो रही है इधर। तो क्या होगा, इधर समर में देखो, समर में आ जाते हैं और रेनी सीजन में बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर देते हैं, और विंटर में फिर चले जाते हैं। विंटर में क्यों तो ये आ गए, विंड की वजह से आ गए। अभी सीजन रिवर्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप तो समझ लो, ये आप लोग देख सकते हो ना, हाँ, इधर से लेकर इधर आता है हमारी मॉनसून, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीजनल रिवर्सल। तो इधर आ गया और फिर से इधर रिवर्स हो गया, पर क्यों हो गया, विंटर्स में क्या होगा, इधर लो प्रेशर के बजाय हाई प्रेशर होगा, बिकॉज लैंड हीट्स अप फास्ट, कूल्स फास्ट, और इधर अभी भी लो प्रेशर होगा, बिकॉज समर में बहुत ही इंटेंसली हीट हो गया, और वाटर जो है इट नाइदर हीट्स अप फास्ट, कूल्स फास्ट, तो इधर अभी भी लो प्रेशर ही है, वो अभी कूल डाउन नहीं हुई है। तो विंटर में जब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब विंड्स ब्लो होते हैं, तो अपने गुड्स को फिर से पैक कर देते हैं, जो कुछ भी प्रॉफिट मिला है उनको इंडिया में ट्रेड करके, तो वो पैक कर लेते हैं और फिर से इधर आ जाते हैं उनके कंट्री में, और उधर अपने कंट्री में चले जाते हैं। गॉट टू नो, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच यू मस्ट रिमेंबर। इस कॉन्सेप्ट को याद रखनी चाहिए हमको। हाउ डिड द पीपल कम फॉर ट्रेड एंड व्हाई डिड दे गेट, Arabics mostly they found it good. That is the reason why Arabics only named it as monsoon, that is season, and we call here as monsoon. Understood? Why is it so, that why? And one more thing you remember, that we get the monsoon which we get in our India is because of the southwest monsoon winds. और अभी मैं बताती हूँ कि ये southwest monsoon winds, northeast monsoon winds कैसे रिमेम्बर करनी है, वो भी मैं अभी बताती हूँ। तो इधर से लेकर पूरा इधर आ जाते हैं हमारी विंड, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, इधर पूरा बारिश लेके आते हैं, और जो लोग ट्रेड करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से सभी स्टेट्स में ट्रेड कर देते हैं, और इधर तक पहुंचते हैं। बारिश के सीजन यानी कि मॉनसून सीजन, रेनी सीजन में बहुत खूब ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने के बाद जब विंटर आ जाती है, सीजनल रिवर्सल हो जाएगा, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, सीजन बदल जाएगी, विंड की रिवर्स हो जाएगी, और वो फिर से नीचे आ जाएंगी उनकी कंट्रीज पे, और वो चले जाएंगे अपनी ओन कंट्री पे, ठीक है। अंडरस्टूड, गॉट इट, क्लियर, पक्का। इंडिया मैप पे हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, साउथ वेस्टर्ली विंड्स, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स कैसे रिमेम्बर करें। चलो देखते हैं। हाँ, तो चलो देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। तो पहले हम लोग एक ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, ऐसे डिब्बे ड्रॉ करेंगे, तो हमको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट।
है ना, हमको पता है ना, ये है नॉर्थ, ये साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. सो व्हाट हैपेंस नाउ, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, व्हाट हैपेंस नाउ, आई सेड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेन इन आवर इंडिया. सो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, तो क्या होगा, इधर से इधर चलेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, हमारे इंडिया में चलेंगे ना, इधर से इधर लेकर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स चलेंगे ना. तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जब चलेंगे, इसका टेल को पकड़ो, तो हम लोग बोल सकते हैं ना साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स चलेंगे इधर. अभी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के बगले बगले में इंडिया लाई करेगा. सो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ब्रिंग ड्राई विंड्स टुवर्ड्स द साउथ वेस्टर्ली विंड्स फ्रॉम वेयर दे ब्लो. सो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, हाउ टू रिमेंबर, देखो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यानी कि ऐसे आ जाएंगे. नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, टेल को पकड़ो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ब्लो, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है. और अगर हम लोगों को बात करनी है हमारी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, साउथ ईस्टर्ली विंड्स, वो उतने इंपॉर्टेंट विंड्स नहीं है, बिकॉज यू नीड टू जस्ट रिमेंबर अबाउट दीज विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट विंड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट. तो देखो फिर से ड्रॉ करती हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स इधर से आएंगे, टेल को पकड़ो, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स खत्म. उसके बाद साउथ ईस्टर्ली विंड्स बात करनी है, तो इस आर मार्क को इधर बना दो, इधर निकाल दो इसको, तो क्या होगा, इधर से इधर चलेंगे साउथ ईस्टर्ली विंड्स, इधर से इधर चलेंगे, तो टेल को पकड़ो, साउथ ईस्टर्ली विंड्स आगे बढ़ना है. Got it? So this is how we have to identify the winds in India map. Also, you have to identify the same way. Got it? So clear है ना, India's climate is clear. Now we are gonna see the different perceptible variations and temperature variations. But before that, understand that monsoon type of climate is not seen in each and every country. In world map, if we see, South and Southeast Asian countries go with this monsoon type of climate. Now moving on to the India map, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होती है. There are different perceptible variations, there are perceptible different regional variations in climatic conditions. और वो perceptible नहीं यानी कि बारिश नहीं, बल्कि टेम्परेचर में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं. तो पहले टेम्परेचर को देखते हैं. समर टेम्परेचर इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग. राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्या नहीं. तो राजस्थान में टेम्परेचर एट मॉर्निंग क्या होती है, मॉर्निंग में 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है, यानी कि बहुत गर्मी होगी. और कश्मीर में क्या होती है, सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस होती है. कश्मीर कहाँ होगी, जम्मू एंड कश्मीर इधर ही है ना. तो 20 डिग्री सेल्सियस रिमेन हो जाती है एट नाइट. माइनस 20 डिग्री सेल्सियस नहीं, 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम. समर में बात करें हम लोग, इन समर temperatures at some parts of Rajasthan have 50 degree Celsius in the morning and it's just 20 degree Celsius moderate climate देखने को मिलती है. कश्मीर, temperature at Dras in Kashmir. तो similarly at winter nights temperature at Dras in Kashmir, Dras कहाँ भी हो, हमको उससे कुछ भी मतलब नहीं. तो Dras in Kashmir में क्या होगा, वो एक हम दिखाई दे रही, हाँ. तो ड्रास इन कश्मीर में क्या होगा, इन विंटर नाइट्स, विंटर की बात करिए, समर हो गया, ये हम लोग जो बात की है इधर समर की होगी. अभी हम लोग विंटर की बात करें तो विंटर में क्या होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर में -45 डिग्री सेल्सियस एट नाइट वक्त में, नाइट में -45 डिग्री सेल्सियस विंटर नाइट. तिरुवनंतपुरम, केरला का कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम. तो तिरुवनंतपुरम में क्या होती है, वो सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस होती है, मॉडरेट क्लाइमेट. हाँ, 22 डिग्री सेल्सियस बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट होती है ना. तो सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस होती है तिरुवनंतपुरम में. सिमिलरली देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन आल्सो, यानी कि रेनफॉल में भी कुछ वेरिएशंस हमको देखने को मिलती है. जैसे कि मेघालय की बात करें तो मेघालय में क्या होती है, 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है, 400 सेंटीमीटर्स. Whereas in Rajasthan and some parts in Ladakh they receive just only -10 centimeters rainfall. Just -10 centimeters rainfall. In some parts like Ladakh, राजस्थान एक एरिड रीजन है. क्यों है, क्योंकि जब विंड्स ईस्ट टू वेस्ट ब्लो कर रहे हैं, यानी कि इधर से इधर ब्लो कर रहे हैं, वो जब ब्लो कर रहे हैं तब तक जब वो राजस्थान तक आ जाते हैं, वो उसका पूरा मॉइस्चर चला जाता है. नो मॉइस्चर कैरी करते, इधर तक आ जाने पर मॉइस्चर चला जाएगा. इसीलिए क्या होगा, राजस्थान में हर वक्त गर्मी ही गर्मी होती है. एरिड रीजन, ड्राई विंड्स ब्लो, लू बोलते हैं ना हम लोग. तो लू आर द ड्राई विंड्स व्हिच ब्लो इन समर. एंड वन मोर थिंग, रेनफॉल
हमारे इधर क्या होती है, इन सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना यू टेक, हमारे तेलंगाना में रेनफॉल होती है जून से लेकर सितंबर तक, जून से या फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक. But in Tamil Nadu, what happens? The winds, the monsoon will take place in October to November. But why is it so? इधर तो जून टू सितंबर है, इधर तो अक्टूबर टू नवंबर है. पर क्यों है? Because of the variations in climate, rainfall, perceptible variations क्यों होते हैं? उस सभी कुछ हम लोग पढ़ेंगे. ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विथड्रॉल ऑफ मॉनसून, उस कॉन्सेप्ट में हम लोग बहुत ही क्लियरली समझ लेंगे. अब तक समझ लो कि हमारे इधर तेलंगाना रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर. ओके, हमारे तेलंगाना इधर हम लोग तेलंगाना में ऑब्जर्व करते हैं ना, हो गया बारिश, हो गया. अभी सितंबर खत्म, अक्टूबर भी खत्म, नवंबर आ गई है, बहुत ही ठंड हो रही है, विंटर सीजन है ये अभी. सो दैट इज व्हाट द थिंग इज. तो तेलंगाना में जून टू सितंबर बारिश होती है, बट तमिलनाडु में अक्टूबर टू नवंबर होती है. ये भी परस्पिटेबल वेरिएशंस की वजह से ही होती है. और एक और चीज, वेरिएशंस इन सीजनल इम्पैक्ट. Variations in seasonal impact between coastal areas and interior parts of the country क्यों होती है? वैसे देखो, जब हम लोग बात करेंगे इधर की और इधर इंटीरियर की, ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल. एक मिनट, इसको पूरा को इरेज कर देती हूँ मैं. अभी हो गया ना इसका कॉन्सेप्ट. तो क्या बात कर रही हूं मैं, यानी कि कोस्टल एरियाज में उतना एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को नहीं मिलती जितना हम लोग देखते हैं इंटीरियर में. हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल मुंबई और दिल्ली का. दिल्ली किधर है? हाँ, इधर है दिल्ली. और मुंबई किधर है? इधर है मुंबई. तो मुंबई और दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. दिखाई दे रही ना आपको? हाँ, मुंबई और दिल्ली ले लो. तो मुंबई और दिल्ली में क्या होती है, मुंबई तो कोस्टल लाइन ही है, अरेबियन सी से मिलजुल कर रहती है मुंबई, बिकॉज मुंबई इज अ कोस्टल एरिया. और दिल्ली जो है पूरा इंटीरियर में है. कुछ भी कोस्टल एरियाज मुझे दिखाई नहीं दे रहे उसके पीछे. दिल्ली को देखो कितने इंटीरियर में है दिल्ली, और मुंबई को देखो कोस्टल एरिया पे है. तो क्या होती है, इस फैक्टर को हम लोग समझ देंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्लाइमेट कंट्रोल फैक्टर. तो उससे पहले समझ लेते हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. जब वो एनी प्लेस इज नियर टू द कोस्टल एरिया, बिकॉज ऑफ दैट sea breeze, land breeze, it keeps the area somewhat moderate, not extreme climate. Whereas in Delhi, if you see, it is in interior, there is no sea, nothing. How will it receive the sea breeze, land breeze? There is nothing to go with. Extreme conditions दिखाई देती है हमको, because there is no sea breeze, land breeze. Sea breeze, land breeze अगर होती है तो क्या होती है, थोड़ा क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट होगी. जैसे कि मुंबई में देखो कोस्टल एरिया है, इसलिए सी ब्रीज, लैंड ब्रीज होगा. दिल्ली जो है वो बहुत ही इंटीरियर में है, इसलिए सी ब्रीज, लैंड ब्रीज नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो सी और ओशन नियर इट. इसीलिए वो कॉन्टिनेंटैलिटी क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है. एक्सट्रीम कूलनेस इन विंटर्स, एक्सट्रीम हॉटनेस इन समर, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी. तो दिल्ली में अगर हम लोग विंटर टाइम में गई थी दिल्ली, विंटर टाइम में बहुत ठंड होती है. Maybe many of you went in Delhi. What happens, there is so much cool in winter. In Mumbai if you go, there is nothing in that way. दिल्ली में बहुत कष्ट होती है लोगों को, दिल्ली में बहुत कष्ट. तो दिल्ली में क्या होती है, विंटर्स में बहुत ज्यादा अधिक विंटर और समर्स में बहुत ज्यादा अधिक गर्मी. मुंबई में भी वैसा ही होती है. मुंबई वैसा नहीं होता, मॉडरेट होती है, कंप्लीटली ऑपोजिट होती है दिल्ली. मुंबई जो होती है वो कंप्लीटली ऑपोजिट होती है दिल्ली की. एंड डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थर्न प्लेन्स. नॉर्थर्न प्लेन्स कहाँ रहते हैं? इधर फिजिकल मैप में देख रहे हो ना, नॉर्थर्न प्लेन्स इधर रहते हैं. तो मैं बताती हूँ, नॉर्थर्न प्लेन्स इधर से इधर रहते हैं. नॉर्थर्न प्लेन्स इधर हिमालयाज होते हैं, और नॉर्थर्न प्लेन्स इधर ही होते हैं. मेनली हरियाणा, पंजाब यू टेक समवट अप ओनली यू ड्रॉ. हरियाणा पंजाब ले लो, बिकॉज हरियाणा एंड पंजाब दे आर वेरी ग्रेट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर में बड़े हैं, बिकॉज नॉर्थर्न प्लेन्स आर हियर. नॉर्थर्न प्लेन्स आर सो मच फर्टाइल. तो इसीलिए आप लोग ये सभी याद रखो कि नॉर्थर्न प्लेन्स इधर से लेकर इधर तक आ जाएंगे. तो क्या होती है, व्हेन द विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जब ईस्ट टू वेस्ट ब्लो हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, ड्राई बन जाते हैं. When the winds blow from east to west, they become dry in nature.
तो जब ईस्ट टू वेस्ट आते हैं, इसीलिए राजस्थान में क्या होती है, बहुत ही एरिड लैंड देखते हैं हम लोग, बहुत ही एरिड लैंड, यानी कि क्या होती है राजस्थान में ड्राई विंड्स होते हैं, इसीलिए कि हम लोग जब बड़े थे नॉर्थर्न प्लेन्स में ईस्ट टू वेस्ट, मैंने पहले ही बताई थी, जब ईस्ट टू वेस्ट विंड्स ब्लो होते हैं वो कंप्लीटली ड्राई हो जाते हैं, बिकॉज मॉइस्चर, वंस दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दे विल लूज मॉइस्चर, गॉट इट, सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। इसीलिए राजस्थान में बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ही गरम गरम विंड्स ब्लो होती है, लू बोलते हैं हम लोग, हॉट ड्राई विंड्स व्हिच ब्लो इन समर इज कॉल्ड एज लू, इसी को बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तब हम लोगों को फैक्ट्स पता चल जाएंगे कि अगर हम लोगों को पूछा गया है कि राजस्थान में क्यों होती है, 5 रीजंस दे दो, तो एक रीजन है कि ये लीवॉर्ड साइड है माउंटेन्स की, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्यों है लीवॉर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स ये भी मैं बताऊंगी, और दूसरा है ये, और बहुत सारे रीजन है वो भी हम लोग कवर करेंगे, आईटीसी जल के वजह से सब कुछ, ठीक है। सो ये जो वेरिएशंस है, दीज वेरिएशंस हैव गिवन डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइफस्टाइल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। क्यों हमारे महाराष्ट्र राजस्थान में बहुत ही गर्मी है तो उनका कुछ डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है, और मध्य प्रदेश की डिफरेंट होती है, उड़ीसा की डिफरेंट होती है, तमिलनाडु की डिफरेंट होती है, केरला की डिफरेंट होती है, समझ गए आप, क्लियर है। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, ठीक है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, यानी कि क्लाइमेट को वो फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग बहुत ही क्लियरली समझ लेते हैं। So yeah, now talking about the climatic controls. So there are 6 major climatic controls of any place. यानी कि any place जो है, जो कुछ भी place हो, उधर ये जो factors होते हैं, इन्हीं factors से climate जो है control होती है। So let us see what are those climatic controls. Trick भी बताती हूँ इस climatic controls को remember करने के लिए। Latitude, altitude, pressure and system, ocean currents, relief features, distance from sea. तो trick है lap word। तो लैप वर्ड में आप क्या कर दीजिए, W को कट कर दीजिए तो आ जाएगा लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड सिस्टम, ओशन करेंट्स, रिलीफ फ्यूचर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी। हो गया खत्म, लैप वर्ड W कट हो गया। तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड सिस्टम, ओशन करेंट्स, रिलीफ फ्यूचर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, हो गया लैप वर्ड का ट्रिक। तो ये हो गई हमारी ट्रिक खत्म। तो ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है इसको याद रखो बिकॉज इज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट लेट अस सी द फर्स्ट फैक्टर, that is what does latitude play a role, what role does latitude play, so how does it control the climate, first of all how does it control, so latitude plays a very important role। now हमारी अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो तो टिल्टेड है, और अगर हम लोग ग्लोब पे देखें तो वो टिल्टेड है। सॉरी फ्रेंड्स, if I have globe I would show you, but now at my present home I'm not having globe, तो फिर भी कोई बात नहीं, बताती हूँ मैं। तो क्या होती है, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स, यानी कि 0 डिग्रीज लैटिट्यूड जो है इक्वेटर। तो पहले एक ड्रॉ करती हूँ डायग्राम तो सर्कल ड्रॉ करूंगी, पर लैटिट्यूड्स थोड़ा डिफरेंट ड्रॉ करूंगी। तो ये है, तो 0 डिग्रीज लैटिट्यूड, इसको ले लो 0 डिग्रीज लैटिट्यूड, तो सन ये है, तो सन पे क्या होगा, ये है सन, ले लो कि ये है सन। तो सन से क्या हो रही है, वो जो सनलाइट हो रही है वो स्ट्रेट जाएगी, सनलाइट जो है वो स्ट्रेट जाएगी इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो latitudes, according to latitudes only the sunlight varies accordingly, okay, the solar energy received is different in different places। तो ये है सन, तो सन के लिए वो बगल में है इसलिए 0 डिग्रीज में बहुत ही, और उसके बाद में इस पोलर रीजन्स पे बात करूं तो वो स्लैंटिंग जा रही है, थोड़ा स्लैंटिंग, ये भी पोलर रीजन है, स्लैंटिंग ये है टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के बीच में जो होती है टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में देखो स्लैंटिंग जा रही है, टेम्परेट रीजन स्लैंटिंग जा रही है। तो इसीलिए हमको पता होनी चाहिए, एंड दिस इज नॉट अ परफेक्ट ग्लोब विच आई ड्रॉन। ग्लोब यानी कि अर्थ जो है वो टिल्टेड होती है अपनी एक्सिस पे, वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। So just to make you understand, I have drawn this diagram. So
दैट इज व्हाट एट द लोअर लैटिट्यूड्स क्या होती है, देयर आर हायर, ये हायर लैटिट्यूड्स है, ये लोअर लैटिट्यूड्स, एट दिस लोअर लैटिट्यूड्स व्हाट हैपन, देयर आर हायर सन रेज, whereas in higher latitudes there are लोअर सन रेज. गॉट इट. सो हायर लैटिट्यूड यानी कि इधर इधर, लोअर लैटिट्यूड यानी कि ये. तो लोअर लैटिट्यूड पे क्या होगा, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल होगा और हायर लैटिट्यूड पे है वो थोड़ा स्लैंटिंग जॉइन होगा. ठीक है, ये तो क्लियर है ना. तो लोअर लैटिट्यूड मोर सोलर रेज, हायर लैटिट्यूड लेस सोलर रेज. अंडरस्टूड नो. हाँ, एक और चीज, टेम्परेचर एट इक्वेटर इज ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल रीजन. तो मैंने जो ये 0 डिग्रीज बताई है अभी. सो द 0 डिग्रीज लैटिट्यूड टेम्परेचर एट इक्वेटर कैसी होगी, इक्वेटोरियल होगी. टेम्परेचर बहुत ही लाइक गरम गरम होगी. इक्वेटर के बीच में जो कंट्रीज होते हैं वो उसको बोल सकते हैं इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगी. ठीक है नहीं. इक्वेटर के जो पास में होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं और ये टेम्परेचर पोल्स पे जो टेम्परेचर होते हैं वो टेम्परेट होती है, फ्रिजिड होती है. टेम्परेट एंड फ्रिजिड याद रखो. तो दैट इज द रीजन व्हाई द सनलाइट, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द कंट्री वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड. सो हाउ मच क्लाइमेटिक रीजन्स, the total temperate zones, polar zones and tropical zones, tropic of Capricorn, tropic of Cancer. हाँ, इसीलिए लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड डिफरेंटली. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एल्टीट्यूड. सो यस, नाउ टॉकिंग अबाउट एल्टीट्यूड. तो एल्टीट्यूड क्या होती है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर हम लोग ऊपर जाए तो वो जो हाइट होती है वो होती है एल्टीट्यूड. जैसे कि हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स चैप्टर में पढ़ी थी, ग्रेटर हिमालयाज की जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड होती है वो है 6000 मीटर्स, यानी कि हाइट होती है. एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है. पहले हम लोग एल्टीट्यूड की डेफिनेशन देख लेते हैं. तो एल्टीट्यूड इज अ डिस्टेंस मेजरमेंट इन वर्टिकल और अप डायरेक्शन. डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग. जैसे कि ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री ले लो. हिमाद्री हम लोगों ने पढ़ी थी ना, ग्रेटर हिमालयाज. तो हिमाद्री का हाइट जो है 6000 मीटर्स. हिमाद्री जो सरफेस से ऊपर तक उसकी एलिवेशन, उसकी एल्टीट्यूड ले ली है, वो जो मेजरमेंट की है हम लोगों ने, डिस्टेंस की मेजरमेंट की, हाइट टिप ऑफ द हिमालय टू फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हम लोगों ने मेजर की वर्टिकली और अप डायरेक्शन में हम लोगों ने जो मेजर की वो ही होती है एल्टीट्यूड. जैसे कि हम लोग हिमाद्री को बताए थे 6000 मीटर्स एल्टीट्यूड और एलिवेशन और हाइट. So that is what altitude in the sense. Okay, that is what altitude. And next I wrote the point that no connections with altitudes and longitudes. और altitudes और longitudes के बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है. ऐसे मत रखो कि altitude और longitude दोनों सेम है. altitude क्या होती है, वो सिर्फ लाइन होती है, हाइट होती है. longitudes are vertical lines. हाइट होती है altitude, longitudes are vertical lines. उसकी जॉब डिफरेंट है, इसकी जॉब डिफरेंट है. तो अगर हम लोग इंडिया मैप में भी देखें तो ऊपर जब हिमालयाज हायर लैटिट्यूड्स पे ना, सो एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द एटमॉस्फेयर बिकम्स डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस. है क्या नहीं. हिमालयाज में जाने वाले लोग इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करके जाते हैं, बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, एटमॉस्फेयर बिकम्स डेंस ओवर देयर. बस इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं. तो हिमालयाज पे बहुत ही डेंस होती है एटमॉस्फेयर एंड इवन द टेम्परेचर also decreases. तो लोअर लैटिट्यूड्स में इतना नहीं होती जितना हायर लैटिट्यूड्स पे होती है. सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस एट हायर एल्टीट्यूड्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ लोअर एल्टीट्यूड्स. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो हिमालयाज की और ईरान की. ईरान जो है वो है हमारी एशिया में भी है, ईरान, तेहरान. तो ईरान जो है वो लोअर लैटिट्यूड्स पे है, एल्टीट्यूड्स पे है. या फिर हिमालयाज देखो हायर एल्टीट्यूड पे है, उसको समझ लो आप. ठीक है, पक्का क्लियर. Yes friends, now talking about the next and main and important concept, that is pressure and wind system. तो pressure and wind system it completely depends upon the latitude and altitude. जिन्होंने हम लोगों ने complete कर दी कि latitude क्या होती है, altitude क्या होती है. तो ये pressure and wind system पूरा का पूरा इसी दोनों concepts पे dependent होती है, latitude और altitude. तो पहले हम लोग देखेंगे कहानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर की. ठीक है, एक स्टोरी की तरह समझते हैं. यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे फॉर्म होगी.
जैसे कि ग्लोब ले लो, एक इक्वेटर ड्रॉ कर दो इसके बीच में, तो ये है इक्वेटर, इसको ले लो 0 डिग्रीज लैटिट्यूड। तो क्या होती है, इधर 0 डिग्रीज पे हर वक्त गर्म गर्म होती है समर सीजन पे, तो इसको ले लेते हैं लो प्रेशर। तो इधर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो बाहर आ जाएंगे विंड्स, बाहर आके हाई प्रेशर तक डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट इधर हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, हम लोग ऊपर की साइड ले लेते हैं, तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और विंड्स के डिफ्लेक्ट होकर इधर उधर घूमते रहते हैं, एक प्लेस होती है ना उनको सेटल होने के लिए। तो जब वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं वो हाई प्रेशर तक, तो हाई प्रेशर हो गई, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर से विंड्स ब्लो होती है, तो ऑब्वियसली अगेन विंड्स इधर ब्लो हो जाती है। तो इसी तरह प्रेशर एंड विंड सिस्टम चलती रहती है। इसको मैंने सिर्फ आपको बताई है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे वर्क करती है। अभी मैं डिटेली डायग्राम ड्रॉ करूंगी। लो प्रेशर हाई प्रेशर इट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड्स, सन रेज, बिकॉज अगर हम लोग ले लेते हैं ये सन, तो सन से क्या होगा, ये जो सनलाइट होगी 0 डिग्रीज लैटिट्यूड पे डायरेक्टली फॉल करेगी, वेराज इन पोल्स जो हाई प्रेशर एरिया होगी वो स्लैंटिंगली जा रही है। तो लैटिट्यूड, so high pressure depends upon latitude, so low pressure air masses rises up। तो लो प्रेशर में क्या हो रही है, एयर मासेस जो है वो राइज हो गई है अब, और वो किसी दूसरी जगह, जैसे कि वाटर वेपर, सन की हीट वजह से पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाके ऊपर राइज हो जाती है। उसी तरह आप लोग समझ लो, लो प्रेशर एयर मासेस राइजेस अप, और इधर हाई प्रेशर है एयर मासेस सेटल हो जाते हैं, हाई प्रेशर एयर मासेस सेटल डाउन, एंड ऑन सरफेस ऑलवेज द विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द लो प्रेशर हाई प्रेशर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और ये जो लो प्रेशर हाई प्रेशर है, इन दोनों कॉन्सेप्ट ही हमारी वो जो होती है, क्या होती है, विंड को डिफाइन करती है, ठीक है। सो विंड को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, विंड को डेफिनेशन दो, विंड ऑलवेज ब्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हो गया काम खत्म, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, यस नाउ आई शो यू डायग्राम। इन इंडिया ड्यूरिंग समर विंड ब्लोस फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून ओनली बिकॉज इन, क्यों होती है मैं बताई थी, इंडिया मैप में भी अभी बताऊंगी मैं। तो एक डायग्राम ड्रॉ करती हूं आपके लिए मैं, तो उस डायग्राम से हमको और बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कॉन्सेप्ट। देखो ये डायग्राम, ये है जो पानी वाटर, एक मिनट, यानी कि सी ले लो, ठीक है, सी सरफेस, यह है सरफेस, इधर लो प्रेशर क्रिएट हो गई, किसके कारण, सन के हीट के कारण। तो जब लो प्रेशर क्रिएट होगी, विंड्स ऑलवेज राइजेस अप, घूमते नहीं रहेंगे, टिल्ट हो जाएंगे, और हाई प्रेशर के इधर एटमॉस्फेयर होगी, हाई प्रेशर के इधर सेटल हो जाएंगे, और इधर हाई प्रेशर है, ये क्या हो गई, ये लो प्रेशर है, ये है हाई प्रेशर, तो इधर हाई प्रेशर है इसीलिए वो सेटल डाउन हो जा रही है, और ये जो हाई प्रेशर है ये लो प्रेशर है, विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है। समझ गए आपको? एंड दिस प्रेशर एंड विंड ओनली विंड सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अब क्लियरली पता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से लाते हैं हमारे इंडिया में मॉनसून। सो इन इंडिया ड्यूरिंग समर्स विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। पर कैसे, मैंने बताया था कि समर में ये जो साउथ वेस्ट में होती है हाई प्रेशर और इधर होती है लो प्रेशर, इसीलिए क्या होती है, इधर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाती है और इधर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है, और विंड्स हर वक्त हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाती है। तो इधर से लेकर इधर तक विंड्स बोती जाती है और मॉनसून आते हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा प्रेशर एंड विंड सिस्टम रिजल्ट्स इन मॉनसून। मॉनसून इन इंडिया साउथ वेस्ट मॉनसून को भी इन्फ्लुएंस करते हैं ये, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए।
सो साउथ वेस्ट मानसून विंड कैरीज मॉइस्चर कॉजेस रेनफॉल, क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, इसीलिए हमारी इधर मॉनसून बारिश हो जाती है। समझ आ गई आपको? क्लियर? हाँ, तो अभी डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। रिकॉल द स्टोरी ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। एक बार रिकॉल करो, मैं वेट करती हूँ। रिकॉल हम लोगों को ये 8th क्लास में नहीं थी, 7th 6th क्लास में थी ये। कम ऑन रिकॉल। क्या हुआ पता नहीं चल रही? मैं बताती हूँ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की कहानी। तो लैंड ब्रीज होती है जब लैंड से सी विंड ब्लो होती है, तो वो होती है लैंड ब्रीज। और स्पेशली लैंड ब्रीज टेक्स प्लेस इन नाइट टाइम। और सी ब्रीज जो होती है वो होती है मॉर्निंग टाइम, यानी कि सी से लैंड जो ब्लो होती है वो है सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज नाइट पे क्यों और सी ब्रीज मॉर्निंग पे क्यों, उसको समझते हैं। तो एक चीज आप लोग याद रखो, एक प्रॉपर्टी, चलो बोर्ड पे जाते हैं। अरे भाई बोर्ड पे जाते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग बोर्ड पे। तो देखो मैं समझाती हूँ। तो जब लैंड ब्रीज होती है वो लैंड टू सी होती है और वो नाइट टाइम में होता है। तो पहले हम लोग मॉर्निंग टाइम की बात करेंगे, सी ब्रीज के बारे में बात करेंगे, जो कि सी टू लैंड ब्लो करती है, सी टू लैंड ब्लो करती है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, सी ब्रीज, सी टू लैंड। तो देखो सी ब्रीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ, तो सी ब्रीज के बारे में अगर बात करें तो सी टू लैंड होगा। तो ये है सी और ये है लैंड, ये है सी, ये है लैंड। तो सी टू लैंड जो ब्लो होती है वो होती है सी ब्रीज पर। ऑटोमेटिकली ब्लो नहीं होती, क्या होती है, एक प्रॉपर्टी आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। लैंड हीट्स अप फास्ट, कूल्स फास्ट। इसको लिख लो आप, लैंड हीट्स अप फास्ट एंड कूल्स फास्ट। तो लैंड जो है बहुत ही जल्दी हीट भी हो जाती है, कूल भी हो जाती है। और वो जो पानी होती है वो बहुत ही ऑपोजिट हो जाती है। ऑपोजिट टू व्हाट? लैंड। तो सी neither cools up fast neither heats up fast। तो क्या होती है मॉर्निंग टाइम पे, बहुत ही सनी होती है। तो सनी होती है तो नाइट टाइम में क्या होती है, बहुत ही ठंडा होती है। तो सी में अभी भी हाई प्रेशर ही है, बिकॉज मैं बताई थी कि सब स्लो कूल्स डाउन स्लो। तो अगर हम लोग बात करें सी के बारे में ही, तो सी पे अभी भी हाई प्रेशर ही है, बिकॉज रात पे जो बहुत ही ठंडी है और अभी अभी गर्मी आई है मॉर्निंग टाइम, तो वो जल्दी लो प्रेशर क्रिएट नहीं होती, जल्दी लो प्रेशर यानी कि गर्म नहीं होती, तो अभी भी हाई प्रेशर है। और लैंड का मैंने बताया था कि लैंड हीट्स अप फास्ट कूल्स फास्ट। तो जब लैंड हीट्स अप फास्ट कूल्स फास्ट होगी, सन की गरिमा प्रथम होगी। सो जब सन की गर्मी प्रथम होगी तो लैंड बहुत ही जल्दी हीट हो जाएगा। तो इधर क्या हो गई, लो प्रेशर हो गई। तो इधर है अभी हाई प्रेशर और इधर है अभी लो प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों है मैंने बताई है कि हाई प्रेशर इसीलिए होगा कि जब रात में बहुत ही ठंड होती है तो रात से मॉर्निंग सुबह तक वो बहुत ही कूल डाउन हो गई और अभी भी हाई प्रेशर है, और वो उसको गर्म होने के लिए अभी शाम लगेगा। तो जब शाम लगेगा तो सन की गरिमा प्रथम होती है सिर्फ लैंड को, बिकॉज लैंड हीट्स अप फास्ट कूल्स फास्ट। और ये बहुत ही स्लोली होती है, सी वाटर जो होती है बहुत ही स्लो होती है, स्लो स्नेल की तरह होती है। तो अभी भी इधर हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है। एंड वी ऑलमोस्ट नो दैट विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, इसलिए हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक विंड्स ब्लो हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको सी ब्रीज बोला है। और ये जो कॉन्सेप्ट होती है मॉर्निंग टाइम पे होती है, इसीलिए हम लोगों ने बोल दी इसको सी ब्रीज। तो खत्म, सी ब्रीज हो गया। अब लैंड ब्रीज के बारे में बात करते हैं। तो लैंड ब्रीज अगर बात करें तो मैंने बताई थी लैंड ब्रीज होती है रात के वक्त और लैंड टू सी होगी। क्यों होगी बताती हूँ। अभी जो सी पे जो है ना, सी क्या हो गई, सी अभी लो प्रेशर है, सी के इधर लो प्रेशर है और लैंड के ऊपर हाई प्रेशर से इधर है लैंड टू सी। क्यों सी पे लो प्रेशर क्यों है, तो ये हो गई सी, ये है लैंड। तो सी पे अभी लो प्रेशर है, लैंड पे अभी
हाई प्रेशर है पर क्यों है? देखो जब रात हो गई है तो यानी कि मैंने बताई थी कि मॉर्निंग टाइम पे वो उतना जल्दी कूल नहीं होगी, बिकॉज मॉर्निंग टाइम पे तभी वो हाई प्रेशर क्रिएट कर ले उधर। सी कौन? सी वाटर इट कूल्स डाउन स्लो, हीट्स अप स्लो। तो अभी अभी उधर लो प्रेशर क्रिएट हो गई, शाम को ही तो सुबह चला जाती है और रात आ जाती है, तब उस वक्त क्या होती है उधर लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है। और लैंड ऑब्वियसली आपको पता है लैंड हीट्स अप फास्ट कूल्स फास्ट, इसलिए लैंड के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाती है। क्यों हो जाती है लैंड के ऊपर हाई प्रेशर इज क्रिएटेड? बिकॉज लैंड जो है बहुत ही कूल डाउन फास्ट हो जाती है। तो रात के वक्त अभी सूरज नहीं है, चंदा मामा है, चंदा मामा है, तो चंदा मामा है इसीलिए बहुत ही ठंडी हो जाती है लैंड। इधर हाई प्रेशर क्रिएट हो गई, इधर क्या है लो प्रेशर, अभी अभी लो प्रेशर क्रिएट हो गई और रात सुबह 6 बजे तक वो इसके ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। फिर इसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होने के लिए फिर से शाम लेगी, तो शाम के वक्त क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगी। तो फिर लो प्रेशर से सुबह 6 बजे तक उसको लेगी हाई प्रेशर, कौन? सी। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है सी की, वाटर की, whereas लैंड इट इज वेरी फास्ट। तो जब इधर हाई प्रेशर, अब इसको अरेस्ट कर देते हैं, कंफ्यूजन हो रही है आपको, तो अभी लो प्रेशर है सी पे, ये आपको अरेस्ट कर देती है मैं, अरेस्ट कर देती हूँ मैं। तो इधर है लो प्रेशर, इधर है हाई प्रेशर, तो ऑलवेज द विंड्स ब्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इधर है हाई प्रेशर, लैंड से सी ब्लो करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज, वो जो होती है नाइट टाइम पे होती है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखो। और अभी हम लोग आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी कॉन्सेप्ट के ऊपर। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देख सकते हो ना आप? ग्रेट। तो ये देखो, ये है हमारी इंडिया मैप। तो मैंने एग्जाम्पल दी थी दिल्ली की, एग्जाम्पल मैं दी थी मुंबई की। तो दिल्ली में क्या है, वो बहुत ही इंटीरियर में है, देख रहे हो ना? और ये जो है वो थोड़ा कोस्ट लाइन में है, कोस्ट। तो दिल्ली जो है इंटीरियर में है, तो लैंड ब्रीज सी ब्रीज कुछ भी नहीं होगी, बिकॉज वो जो इंटीरियर में है उसके पास कुछ भी लैंड नहीं है, सिर्फ इसके बगेले में कुछ वाटर सी है। उसके बाद राजस्थान ही आता है, पूरा डेजर्ट होता है, गुजरात, हरियाणा, पानी ही नहीं होती इधर। यानी कि मैं पानी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सीज ओशंस के बारे में। इधर इंटीरियर में पूरा सिटीज होती है इधर दिल्ली में, तो दिल्ली में तो पूरा सिटीज ही होती है, इंटीरियर में है, पूरा सिटीज से कवर्ड है, इधर भी सीज ओशंस नहीं दिखाई दे रहे। जैसे मुंबई में देखो तो अरेबियन सी के बहुत ही करीब है ये मुंबई, फिर दिल्ली बहुत ही इंटीरियर में है। तो जब इंटीरियर में है, क्या सी ब्रीज लैंड ब्रीज होगी? नहीं होगी, है क्या नहीं? रात के वक्त भी रात ही होगा, मॉर्निंग के वक्त मॉर्निंग ही होगा। तो ये देखो, ये दिल्ली ना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि समर में समर की तरह, रात भी समर की तरह ही होगी, मॉर्निंग भी समर की तरह होगी। रात भी समर की तरह इसलिए होगी बिकॉज लैंड ब्रीज नहीं होती ना। अगर लैंड ब्रीज होती तो रात का वक्त क्या होता, तो कूल होता, पर सी नहीं है, ओशन नहीं है, इसीलिए इसको बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस फेस करनी पड़ेगी। इसको दिल्ली को बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटालिटी। और ये मुंबई में जो होती है, मुंबई की कोस्ट जो होती है, इधर क्या होती है, वो मॉडरेट होती है, इतना कुछ देखने को नहीं मिलती, मॉडरेट होती है। whereas दिल्ली में कॉन्टिनेंटालिटी फेस किया जाता है, यानी कि क्या होती है, as the distance from the sea increases, the moderating climate decreases and there will be extreme, that is moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions, that is example is दिल्ली हम लोग ले सकते हैं, दिल्ली ही हम लोग ले सकते हैं। और एक और चीज रिमेम्बर कर लो, so severe winter in Delhi, so severe summer in Delhi, so this condition is known as continentality, very hot during summers and very cold during winters, इसको हम लोग बोलते हैं continentality। तो ये हो गया हमारी दिल्ली और मुंबई की काम। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी हो गया। अभी ओशन करेंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग।
ओशन करेंट्स, movement of ocean water in different in a pattern is called as ocean currents. यानी कि एक पैटर्न में जब वाटर मूव होती है ओशन में तो क्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओशन करेंट्स. एंड द पैटर्न में ऑल्सो चेंज, पैटर्न भी चेंज भी हो सकती है. इसको भी डिटेल समझते हैं. स्वैप, भाई स्वैप हो जा. Swap. So yes, now next concept which we are going to study is ocean currents. तो ocean currents क्या होते हैं? Ocean currents, the continuous movement of ocean water in a pattern. The pattern में change also. तो ocean currents वो होते हैं जो continuous movement of ocean water के कारण फॉर्म होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ओशन करेंट. सो द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ पैटर्न एंड द पैटर्न में ऑल्सो चेंज. ओके, द पैटर्न में चेंज ऑल्सो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओशन करेंट्स. एंड द पैटर्न विल चेंज इन दिस मैसिव मूवमेंट. और ये जो हो रही है द मैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे कि वेव्स होंगे, टाइड्स होंगे, रोटेशन ऑफ द अर्थ होंगे, स्लोप्स भी होंगे, तो ये सब कुछ है ना मूवमेंट ऑफ ओशन करंट के कॉज है. दीज ओशन करेंट्स आर आइदर हॉट और कूल. ये ओशन करेंट्स जो है वो हॉट भी हो सकते हैं और कूल भी हो सकते हैं. सो चीज ओशन करेंट्स अफेक्टेड with the onshore winds. So क्या ocean currents along with onshore winds affect the climate of the country. तो ये ocean currents जो है वो कंट्री को अफेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट ऑफ द कंट्री अफेक्ट करता है. जैसे कि ओशन करेंट्स, ये क्वेश्चन है, ओशन है यार, तो ओशन करेंट्स ब्लो हो रही है इधर और ये है विंड. तो ओशन करेंट्स अलॉन्ग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट दी, यानी कि ओशन करेंट्स यानी हॉट हो तो ऑनशोर विंड्स भी हॉट होंगे, अगर ओशन करेंट्स कूल हो तो ऑनशोर विंड्स भी कूल होंगे. वैसे जैसे कि राजस्थान को हम लोगों ने देखी थी, चलो जाते हैं राजस्थान के पास. तो इधर क्या करो, राजस्थान को देखो, आप लोग राजस्थान को एक बार देखो तो राजस्थान में जो है पूरा ड्राई विंड्स होता है इधर. तो एक मिनट, हाँ, तो वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉर्नर्स इन द सब ट्रॉपिक्स ऑफ डेजर्ट. वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ सब ट्रॉपिक, एक मिनट, सब ट्रॉपिक और ट्रॉपिक में आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ. क्या होती है सब ट्रॉपिक और ट्रॉपिक? तो देखो ये हमारी इंडिया है, तो इंडिया के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सब ट्रॉपिक्स, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रॉपिक. तो वो सब ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक कैसे डिवाइड करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से. सो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू सब ट्रॉपिक्स एंड ट्रॉपिक्स. तो एक्चुअली सब ट्रॉपिकल एरिया जो होती है वो कम होती है ट्रॉपिकल एरिया से, तो सब ट्रॉपिकल ऊपर. तो द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ डेजर्ट, जैसे कि राजस्थान की बात कर रही हूँ मैं, राजस्थान में है थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, तो ये सब कुछ डेजर्ट राजस्थान में ही क्यों है, बिकॉज ऑफ द ओशन करेंट्स देयर, ओशन करेंट्स. और एक और चीज, नॉर्दर्न प्लेन से ईस्ट टू वेस्ट जो होती है, ईस्ट टू वेस्ट जो होती है, वो जो ईस्ट टू वेस्ट विंड्स ब्लो होते हैं वो ड्राई विंड्स बन जाते हैं, बिकॉज जब वो ब्लो करते हैं इधर से इधर वो पूरा मॉइस्चर को लेते हैं, और जब आते हैं इधर ड्राई विंड्स आते हैं. और ओशन करेंट्स, इसी के बारे में बात करिए, ओशन करेंट्स की वजह से, ऑनशोर विंड्स की वजह से जो हॉट विंड्स आते हैं, लू, हॉट ड्राई विंड्स व्हिच ब्लो इन समवेयर इन सम पार्ट्स ऑफ द एरिया, सो वो जो आती है वो ड्राई विंड्स हो जाती है. इसीलिए राजस्थान में ही वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ सब ट्रॉपिक्स एक्सपीरियंस हैव डेजर्ट. ठीक है, अभी रिलीफ का भी इधर ही बात करते हैं. रिलीफ तो क्या होती है, रिलीफ, रिलीफ टैबलेट, ठीक ना. रिलीफ यानी कि जब हमको बहुत सर दर्द आती है, जो हम लोग रिलीफ के लिए यूज करते हैं वो टैबलेट रिलीफ, बिल्कुल भी नहीं. उतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं होती है. हमको अभी हिमालयास देखनी है, हिमालयास, हाँ ये ठीक है, हिमालयास दिखेंगे अभी हमको. तो ये जो रिलीफ होती है, रिलीफ यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि हम लोगों ने इधर देख रहे होंगे, इधर एक मैप है, तो इधर से इधर जो है ग्रेटर हिमालयास होते हैं. जैसे कि हमारे इधर देखते हैं हम लोग, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश से लेकर इधर तक पूरा हिमालयास ही होंगे.
ठीक है। तो पूरे हिमालयास इधर से इधर तक हिमालयास होंगे। तो इस हिमालयास की अगर बात करें तो दिस इज द रिलीफ। तो क्या होती है, इधर से क्या होती है, कोल्ड विंड्स आती है। तो ये क्या करती है बताती हूं मैं, क्या होती है इधर, जैसे कि हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट। ये जो ग्रेटर हिमालयस होते हैं जो 6000 मीटर्स के होते हैं हिमाद्री, तो ये दीज एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। ओके, कोल्ड और हॉट विंड्स के लिए बैरियर्स होते हैं। विंडवर्ड साइज कॉज प्रेसिपिटेशन, तो इधर से ऊपर होती है तो इधर तक लद्दाख एक्सटीरियर होती है। तो क्या होती है, इधर से जब कोल्ड विंड्स आती है तो हिमालयस उसको रोक देते हैं और पूरा बारिश लद्दाख में होती है। इसलिए लद्दाख बहुत ही कूल प्लेस होती है। क्यों, लद्दाख में ही पूरा बारिश हो रही है ना, जो हमारे से इधर चाइना से आ रही है, पूरा बारिश चाइना और तिब्बत में ही होगा और लद्दाख में होगा। हमारे इधर इंडिया, अगर ये कोल्ड विंड्स का बारिश हमारे इंडिया में होता, अगर ये बैरियर्स नहीं होते, ये हिमालयास की बैरियर नहीं होती, तो हमारा पूरा इंडिया कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। इसलिए हमको हिमालयास को थैंक यू बोलनी चाहिए। कोल्ड विंड्स आर नॉट एंटरिंग इनटू आवर इंडिया, थस इट्स नॉट अ कोल्ड डेजर्ट। तो पूरा बारिश यही हो रही है, बिकॉज मैंने बताई भी थी, ग्रेटर हिमालयास इधर से लेकर इधर तक जाएंगे, तो इधर से लेकर इधर तक यानी कि पाकिस्तानी बॉर्डर तक पूरा ग्रेटर हिमालयास है। तो इधर तक नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा, लद्दाख में होगा, जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा थोड़ा होगा। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख पाकिस्तान इतने ठंडे ठंडे होते हैं। समझ आ गया आपको? तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरली समझनी चाहिए। और एक और चीज, हमारे इधर इंडिया में क्या आती है, साउथ वेस्ट मानसून लेके आती है बारिश। तो ये माउंटेन्स क्या करती है, माउंटेन साउथ वेस्ट मानसून मीन्स तिब्बत और चाइना को नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। क्यों नहीं देते तिब्बत और चाइना को? बिकॉज दिस माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स। पूरा बारिश हमारे इंडिया में भी होने देते हैं, ठीक है। तो तिब्बत और चाइना को हमारी बारिश नहीं मिलती, वेराज उनकी बारिश हमें भी नहीं मिलती, उन पे ही होगी, एक तरफ लद्दाख में ही होगी। गॉट इट? ग्रेट। तो चलो, क्लियर है। रिलीफ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। ये हम लोगों ने पढ़ी थी, जो कुछ भी फैक्टर्स है सभी कंट्रीज के, यानी कि एट एनी पॉइंट, एट एनीवेयर इट इज। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। स्वैप द स्क्रीन।